हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फर्दर विद कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। पार्ट वन और वी ऑलरेडी डन एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी एंड देयर इज नो मोर टाइम, लाइक वी हैव अ लेस देन 2 months। मतलब लाइक कि मतलब you have to increase your speed, and yes, this is your last attempt. Let's start with the another section. Now start. In a previous video, we completed till there service on the foreign company. That is the section number 383. Now let's start with this next section. That is the section number 384. That is talking about debenture, annual return, registration of a charges, books of accounts, and their inspections. Okay, let's start. Provision of the section 1 shall apply to the foreign company. Means in this section they specify ki for this particular things, that is the particular section applicable as if the company incorporated in India, doesn't matter if it is incorporated outside the India। मतलब ये सेक्शन ऐसे इम्प्लाई होगा दैट जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, तो इस सेक्शन की सेम एप्लीकेबिलिटी होगी फॉरेन कंपनी में। दैट इज प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 71, इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स shall apply mutatis mutandis to the company foreign company। section number 92, preparation and filing of annual return, जैसे कि इंडियन कंपनीज को है, सेम एज विद द फॉरेन कंपनी। एंड सेक्शन नंबर 135, CSR की रिस्पांसिबिलिटी सेम एज एप्लीकेबल टू द इंडियन कंपनी and same as applicable to the foreign company। ठीक है, but subject to the some exceptions we have to see now if the apply to the foreign company incorporated outside India, we will see in a respective law section, that is the section number 135, corporate CSR की responsibilities। Now let's start। this is the मतलब कि हमें registration of the every foreign company shall prepare and file करेगी annual return in FC form 4 के अंदर with the prescribed fees, जो भी फीस प्रिस्क्राइब कर रखी होगी, कितने टाइम के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days from the last day of its financial year to the registrar and containing such particular as understood on the close of the financial year। means in this मतलब FC4 में आप हर फॉरेन कंपनी फाइल करेगी विद इन 60 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। क्या डिटेल्स होंगी, पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एंड फाइल द एनुअल रिटर्न। मींस कंपनी की जो भी सारी डिटेल्स होंगी रजिस्ट्रार कंपनी को एज अंडरस्टूड द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ प्रोविजन रिलेटेड टू द कैप्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन नंबर 182 एज एप्लीकेबल टू द इंडियन कंपनी सेम एज एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी। दैट इज द सेक्शन नंबर 128 शैल अप्लाई टू द फॉरेन कंपनी की कहाँ कहाँ से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस के डॉक्यूमेंट रखने हैं। रिमेंबर वाइल मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कैप्ट होंगे, सब चीजें डिटेल्स दी जाती है, असेट्स एंड लायबिलिटीज के books of accounts। and provision of the section number chapter 6, that is the registration of the charges, shall also apply to the charges on the created and acquired by the foreign company। means same as applied to the foreign company। provision related to the chapter, दिस इज विच चैप्टर, दिस इज द 14 रोमन नंबर। याद है बचपन में हम लोग करते थे 1 2 एंड वी ये तो मतलब लाइक इट्स अ वेरी हार्ड टफ काम। ठीक है, नाउ कम बैक। प्रोविजन ऑफ द चैप्टर, this is 14, inspection, inquiry and investigation shall also apply to the Indian business of the foreign company as they apply to the company incorporated in India। मैंने आपको इन चार थिंग्स में बोला था आपको कि as applied to the Indian company same as applied to the, मतलब 5 चीजें, that is the debenture related। second thing is the section number 92 135, that is the CSR and FC4 फाइल करना पड़ेगा within 60 days, that is the annual return। section 128 cap books of accounts related, chapter number 6, that is the registration of the charges, and chapter number 14, that is related to the inspection, inquiry and inspection investigation same as applied to the foreign company as company incorporated in India। okay, now fee for the registration of the documents, that is section number 385। देयर शैल बी पे टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसके लिए प्रिस्क्राइब फीस हमें पे करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन है जो कि सेक्शन नंबर 386 में है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दीज 3 थिंग्स, that's why I'm studying it। that is minor interpretation, that is section number 386। certified का मतलब क्या होता है, certified means certified in a prescribed manner to be a true copy or correct translation। means it should be, suppose that Japan है, if it is in a English language we have to convert it and then give a like in a certified language, means it's a English language, so that we have to give। now come to the, that is a director in relation to the foreign company, include any person in accordance with the directions
or instruction of the board of the customized to act. Okay, so director का मतलब place of the business में क्या include है? Share transfer और registration office. Student, this is the highlight point. मैं इसको डिफरेंट कलर से करती हूँ. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे. यू हैव टू लर्न, सी द एग्जांपल आल्सो. सो प्लेस ऑफ बिजनेस में इंक्लूड होते हैं शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज आल्सो द इंक्लूड. मींस व्हाट? शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस include in the place of business. Okay, now let's start with the another section, that is the डेटिंग. नाउ अब प्रोस्पेक्टस हम इंडिया में इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है 387 एंड देयर आफ्टर 388 एंड देयर आफ्टर 389 एंड देयर आफ्टर 390. 391 is not as such a misstatement. This is, so let's start. This is the important, students, you have to like carefully study. डेटिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड द पार्टिकुलर टू बी कंटेंट देयर. मतलब प्रोस्पेक्टस की क्या डेट होनी चाहिए और क्या क्या उसके अंदर लिखा होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफाइंग सेक्शन नंबर 387. नाउ प्रोस्पेक्टस की क्या डेट होगी, साइन कौन करेगा, दैट इज स्पेसिफाइंग सेक्शन नंबर 387 सबसेक्शन 1. नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टर ऑफरिंग टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी incorporated or to be incorporated outside the India, whether the company has not established, formed, will or will not establish place of business in India unless the prospectus is dated and signed. मतलब कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर प्रोस्पेक्टस को ना तो इशू करेगा, सर्कुलेट करेगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा. फॉर विच पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ just a minute. For the purpose of like कि for the subscribe of the security. Incorporated, not incorporated, doesn't matter. कंपनी incorporated हुई इंडिया में नहीं हुई है, या फिर कंपनी has or not incorporated established इंडिया में, formed or not formed, doesn't matter. But if it is signed or dated, then we can issue. But if it is not signed or dated, then we can't issue, distribute, circulate to anyone in India. So containing such particular. अब प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस. एनहेंसमेंट और प्रोविजन बाय या फिर अंडर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी वाज इफेक्टेड. एड्रेस इन इंडिया, जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट, एनेक्टमेंट, प्रोविजंस, कॉपीज. इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज देन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कैन बी इंस्पेक्टेड. सो ये सब चीजें हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए स्टूडेंट्स. Now next, that is the date on which and the country in which the company would be or was incorporated. मतलब किस कंट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई और किस डेट को हुई, दैट इज आल्सो स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस. वेदर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इफ सो तो एड्रेस ऑफ इट्स प्लेस, प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया भी देना पड़ेगा. मतलब कितनी चीजें देनी पड़ेंगी. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि कंपनी का डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. सेकंड नंबर पे क्या, एनेक्टमेंट, प्रोविजंस अंडर इनकॉर्पोरेशन वाज इफेक्टेड. एड्रेस इन इंडिया देना पड़ेगा जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट और जो भी उनकी सर्टिफाइड कॉपी, इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज तो जो भी जहां पर वो जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं. और डेट, सपोज दैट फॉरेन कंपनी सिंगापुर की इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब कौन सी डेट को इनकॉर्पोरेशन हुई, कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड हुई, विच कंट्री. सो वी हैव टू स्पेसिफाई इट. एंड द कंपनी अगर इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुकी है तो व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो वो प्रिंसिपल प्लेस भी एड्रेस करना पड़ेगा. और अदर मैटर विच में भी स्पेसिफाई इन प्रोस्पेक्टस. सो ये सब चीजें. अब यहाँ पर कुछ और एडिशंस दी गई हैं. क्या? प्रोवाइडेड दैट पॉइंट 1 2 3 ऑफ ए, मतलब पॉइंट 1 2 3 मतलब इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड है, 3 पॉइंट से रिलेटेड है ये बात. shall not apply in case of the prospectus issued more than 2 years after the date at which the company is entitled to commence the business. मतलब ना तो उसको ये इंस्ट्रक्शन डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही एनेक्टमेंट, ना ही एड्रेस देने की जरूरत. कब? अगर मान सपोज दैट कि इन केस ऑफ द प्रोस्पेक्टस इशूड more than 2 years after the date at which the company is entitled to commence the business.
मतलब मोर देन 2 years हो चुके हैं आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमर्स द बिजनेस, तो उस केस में क्या है, आपको 3 पॉइंट्स लिखने के फॉलो करने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट. नो बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लायंस, एनी कंडीशन दैट इज अ डिटेल यू कैन स्टडी. फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये सब चीजें स्पेसिफाई करी गई हैं, आप देख लेना. ये सारा डिटेलिंग पार्ट है. यू विल स्टडी. मेनली क्या था कि वहां पर कि क्या क्या आपको प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना पड़ेगा. दैट वर द 5 पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर. सो मैंने 5 डिटेल्स आपको बता दिया कि उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी another section, that is the provisions. Just a minute. Provisions as per the experts consent and allotment. डेटेड साइन होना चाहिए अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स की कंसेंट भी होनी चाहिए उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले. मतलब यहाँ पर भी सेक्शन नंबर 388 में ये लिखा गया है, कोई भी पर्सन जो है इशू नहीं करेगा सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया. सेम लैंग्वेज लिखी हुई है. इन सिक्योरिटीज और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया वेदर द कंपनी हैज और हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड वेदर द फर्म और विल नॉट एस्टेब्लिश इन इंडिया. इफ prospectus include the statement purporting to be made by an expert, B has not given or has before the delivery to the of the prospectus to the registration withdraw his written consent. आप ये लैंग्वेज में आपको सिंपल सी लैंग्वेज समझाती हूँ कि कोई भी प्रोस्पेक्टस ना तो सर्कुलेट, वो मैंने इनिशियल लैंग्वेज आप की ये बता दी, सर्कुलेट इशू और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता इंडिया में अनलेस एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया हो जिसमें उसकी कंसेंट लिखी हो और वो कंसेंट विड्रॉ नहीं होनी चाहिए बिफोर. यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रेशन. किसको? रजिस्ट्रार को. मतलब ना तो उसने कंसेंट विड्रॉ करी हो और उसने अपनी कंसेंट दे रखी हो कि हाँ आई एम गिविंग माई कंसेंट और यही लैंग्वेज लिखी हुई है, तो क्या होगा? इफ प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव इफेक्ट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड. सो दिस इज द लैंग्वेज यू कैन स्टडी, डीप लैंग्वेज. तो यहाँ पर क्या है, और ये फॉर द स्टेटमेंट जो है शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रोस्पेक्टस इफ इट इज कंटेन इन एनी रिपोर्ट मेमोरेंडम अपीयरिंग ऑन अ फेस दैट इनकॉर्पोरेट. मतलब ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखा होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स कंसेंट. ठीक है. अगर एक्सपर्ट ने कंसेंट विड्रॉ कर ली है बिफोर द डिलीवरी फॉर द रजिस्ट्रेशन तो वो इनवैलिड होगा टोटली. और पहले विड्रॉ नहीं करी हो कंसेंट और कंसेंट दे दी हो तब उसको वैलिड माना जाएगा. और ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखा होना चाहिए कि यस इट इज द एक्सपर्ट्स कंसेंट. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस 389. सो दिस इज द डिटेल्स कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा प्रोस्पेक्टस का. वही कोई भी पर्सन नो शैल इशू, वही सेम लैंग्वेज यू कैन स्टडी. कब प्रोस्पेक्टस इशू डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट होने से पहले एक कॉपी certified by the chairperson of a company and 2 other director of a company as having been approved by the resolution of a managing body has been delivered for the registration to the registrar. मतलब इसको इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले एक सर्टिफाइड कॉपी जो है साइन सर्टिफाइड करी जाएगी चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी और 2 other डायरेक्टर जिनकी, और वो रिजोल्यूशन पास करेंगे और हैज बीन डिलीवर कर दिया वो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए. और प्रोस्पेक्टस ऑन द स्पेस की कॉपी जो है डिलीवर हो चुकी है. ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस पे लिखा होना चाहिए कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड, ये भी लिखा होना चाहिए. और देयर इज एन इंडोर्स्ड और अटैच्ड टू अ कॉपी and any consent to the issue of prospectus requiring under section 388. मतलब एक्सपर्ट कंसेंट की बात कर रहे हैं तो सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो ये थिंग्स क्या है हमारी लिखी होनी चाहिए डिटेल्स. किस पर? सबसे पहले आ जाओ, इशू करने से पहले चेयरपर्सन के सर्टिफाइड लेना पड़ेगा और 2 other डायरेक्टर, और वो कंसेंट को सर्टिफाइड कॉपी कहाँ सेंड करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को. और ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं इसको हम प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना पड़ेगा यस वी हैव डिलीवर्ड. एंड आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस उसके फेस पे लिखना पड़ेगा दैट वी हैव डिलीवर्ड दैट डॉक्यूमेंट्स और एक्सपर्ट की कंसेंट भी लिखनी पड़ेगी. अब आ जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एनेक्स्ड करने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टस के साथ. कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायरिंग फ्रॉम सच एन एज एन एक्सपर्ट, वो भी डॉक्यूमेंट जो उसकी कंसेंट लिया वो भी स्पेसिफाई होनी चाहिए. और कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूसिंग इनटू द राइटिंग, तो मेमोरेंडम गिविंग द फुल पार्टिकुलर्स. अगर आपने एमडी से नहीं लिया है कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट तो मेमोरेंडम में सारी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, उसकी कॉपी उसके साथ अटैच होगी, एक्सपर्ट की कंसेंट की कॉपी अटैच होगी. तीसरी क्या कंसेंट अटैच होगी? कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस
but entered within the 2 years. मतलब preceding 2 years में जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनकी कॉपी उसके साथ अटैच होगी, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट भी होगा अटैच, और कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब कब, अगर प्रोस्पेक्टस साइन करा गया थ्रू द ड्यूली ऑथराइज्ड बाय एन एजेंट ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब जो भी एजेंट्स होते हैं जो भी ड्यूली साइन करते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी हमें इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठ बैठ के रिवाइज करिए वहीं पर। 5 डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू अटैच विद द प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्ट की कंसेंट, सेकंड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर नहीं हुआ है कॉपी तो मेमोरेंडम में फुल डिटेल प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉपी ऑफ द अदर मेटल कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रीवियस 2 years में हुए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि अगर प्रोस्पेक्टस जो है साइन करा गया थ्रू द ड्यूली एजेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्दर। अब आ जाते हैं ऑफर। ऑफर ऑफ द, मतलब अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो INR, बाहर जा रहे हो तो GDR। तो दिस इज द पार्ट, ये इतना मतलब ऐसा सच आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 3 4, मतलब 34 to 36 एंड द चैप्टर 20 कब एप्लीकेबल होंगे, मतलब कब, अगर इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस में कंपनी कोई भी हमारी दे शैल अप्लाई, लेकिन उन्होंने उसका कॉन्ट्रावेंशन करा है तो उस केस में क्या है, ये सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। और IDR इशू करते टाइम फॉरेन कंपनी के द्वारा सेक्शन 34 कब डील करेगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द मिसस्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसस्टेटमेंट लिखा है तो वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाएगी। सेक्शन 35 कब डील करेगा, सिविल लाइबिलिटी फॉर द मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मतलब 34 35 दोनों एम्प्लाई होंगे कब, अगर आप कोई भी मिसस्टेटमेंट देते हैं प्रोस्पेक्टस में। 36 कब लगेगा, डील विद द पनिशमेंट फॉर द फ्रॉडेंटली इंक्लूडिंग द पर्सन्स टू इन्वेस्ट द मनी, सॉरी, ओके। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन 392, आप देख लेना एक बार इसको, नॉट एज सच इम्पोर्टेंट। सो यस देयर इज एन एग्जामिशन भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन एग्जाम कर सकती है कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी को या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, कुछ भी सेक्शन से रिलीफ दे सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। स्टूडेंट दिस इज द रिवीजन वीडियो, so I can't give any kind of the detailed analysis of the particular sections। so मेरे से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पर ना कुछ लिमिटेड टाइम होता है, मतलब स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। सपोज दैट उन्होंने वीडियो देखी, अरे ये तो 5 घंटे की है, वहां पर ये मतलब आई हैव टू गिविंग द मैक्सिमम कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट विद इन अ लेस टाइम। सो स्टूडेंट्स यू also having a very limited time, value your time and understand the what is the conclusion of that particular sections। मतलब लैंग्वेज याद करनी है, बट पर्टिकुलर सेक्शन का एक आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए, यस इस सेक्शन में ये चीजें बताई गई है, व्हाट इज द फैक्ट कंटेंट एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शंस। सो यस दिस इज ऑल अबाउट द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।